So this is TYBCom Institute of Distance and Open Learning Semester 6 subject Human Resource Management. This subject is divided into 3 parts. This is a disclaimer from the IDOL. Let's take an overview of the syllabus. The entire syllabus is divided into 4 modules. The first module is Human Resource Management. The second module is Human Resource Development. The third module is Human Relations. And the fourth module is Recent Trends in HRM. Module, we will be covering 3 parts. The first part is Concept and Features, Functions, Importance and Traditional versus Strategic HRM. Part 2 constitutes of Human Resource Planning, Concept and Steps, Job Analysis, Concept and Components, Job Design, Concept and Techniques. Part 3 constitutes of Recruitment, Concept and Sources, Selection, Concept, Process and Techniques of E-Selection. Move to the first slide, that is Human Resource Management meaning. Well, Human Resource Management is the process of planning, organizing, directing and controlling of the procurement. What is procurement? Procurement is a replacement word for purchasing. Purchasing we use for goods and services, whereas procurement we would be using for human resources management. So right from the beginning, यानी एंट्री से लेकर एग्जिट तक जो भी प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है और कंट्रोल करना है, इसे हम कहते हैं HRM is a systematic process. Right from procurement. Procurement मतलब उन्हें एम्प्लॉय करना, उन्हें डेवलप करना, गिविंग देम कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेट करना, उन्हें मेंटेन करना यानी हमारे पास रखना और जब तक वो एग्जिट नहीं होते हैं तब तक उनका ध्यान रखना. और हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव टू अचीव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं ये हम हमारे आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to achieve individual, organizational and social objectives. Let's now go on to the first topic, that is features of HRM. The first feature of HRM is that HRM is a process. What process? Process of managing human resources. Process of acquiring, that is selection. Process of developing, that is training. Process of motivating and ensuring that employees' commitment is achieved. Since all these aspects are done in a systematic manner, यानी हम पहले मोटिवेट करके फिर सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें मोटिवेट करना है और फिर उनके कमिटमेंट को बरकरार रखना है. और इसीलिए हम कहते हैं दैट HRM इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. HRM हैज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. हम इसे क्यों कहते हैं कि HRM हैज गॉट अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच? सो HRM क्या करता है? इट यूजेस वेरियस सब्जेक्ट्स. HRM अलग अलग सब्जेक्ट से बना हुआ है. कौन से सब्जेक्ट से बना हुआ है? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स को मर्ज करके हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट बना हुआ है. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट
HRM has a multidisciplinary approach. The third concept, HRM is universal in nature, यानी HRM is all pervasive. HRM जो है वो सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एप्लीकेबल है. लेट्स से नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, आजकल एनजीओ में भी एचआरएम का प्रोसेस होता है. एनजीओ में भी एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना होता है, उन्हें ट्रेन करना होता है. ये सारी चीजें हमें करना होता है इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए हम कहते हैं दैट एचआरएम इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली. HRM is a continuous process, यानी it is continuous in nature. HRM एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है तब तक एक कंपनी को HRM करते ही रहना पड़ता है. यू कांट से कि आज मैंने कर लिया तो कल आई विल नॉट डू द प्रोसेसेस ऑफ HRM. सो हमें HRM कंटिन्यूसली करना पड़ता है जब तक एक कंपनी एग्जिस्ट करती है. ओके, ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है. जैसे क्या होता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस बार बार बदलते रहते हैं, तो उन्हें कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखना पड़ता है. ऐसे नहीं कि आज हमने उनको बोनस दे दिया तो हम 5 साल तक उन्हें ना दें, राइट? सो दैट्स व्हाई वी से दैट HRM इज कंटिन्यूअस इन नेचर. HRM is objective oriented. मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी कहा था that HRM is objective oriented. ये कहा था हमने कि उन्हें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे. अब इंडिविजुअल लेवल पे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? जैसे करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन. ग्रुप लेवल पे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? जैसे टीम वर्क. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? जैसे मार्केट शेयर और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना. और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना. देयरफॉर वी से दैट HRM इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. ओके, तो कौन से 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं HRM से क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, नेक्स्ट है दैट HRM करने से हर एक एम्प्लॉई को, ऑर्गेनाइजेशन को और सोसाइटी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग करने से एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट मिलता है? कि उसके स्किल्स एंड एटीट्यूड्स इंप्रूव होते हैं. ट्रेनिंग करने से कंपनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं? कि जब एम्प्लॉई की स्किल्स और बेनिफिट्स इंप्रूव होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स कमाते हैं. और जब दोनों प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, एम्प्लॉई खुश हैं, तो वो सोसाइटी का भी वेल बीइंग होता है. एम्प्लॉई खुश है तो अच्छे क्वालिटी सर्विसेज आते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं. इसके वजह से कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा मिलता है. सो इन शॉर्ट तीनों को बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉइज को, कंपनी को और सोसाइटी को. HRM एक ऐसा फंक्शन है जो ये कोशिश करता है कि हर एक एम्प्लॉइज के बीच में टीम स्पिरिट बनी रहे. व्हाट इज टीम स्पिरिट? वी से, हम हिंदी में कहते हैं कि एक इंसान जब काम करता है और 5 लोग जब काम करते हैं, हम कहते हैं ना 5 उंगली से एक मुट्ठी बनती है. सो HRM डेवलप्स टीम स्पिरिट. सो व्हाट हैपेंस? टीम स्पिरिट, and team spirit leads to success in the organization. So HRM ये कोशिश करता है that all the members in a group work together. Okay, HRM uses integrated use of subsystems. Now the word integrated was even put in the previous slide. What is the meaning of integrated use of subsystem? Now, integrated use of subsystems is that, HR has a lot of components like training and development, career development, organizational development, performance appraisal. So now all these subsystems are put together in use, and only then you can achieve the objectives. And the last feature of HRM is that it develops employees' potentials. What happens is, when the employees get training and development, when the employees are motivated, when the employees' career is developed,
employees' potentials are developed. Okay, so potentials means capacity, capability. You know, they can use their capability and capacities to the maximum level. So these are the features of HRM, which include HRM is a process. It adopts a multidisciplinary approach. It has universal application. It is continuous in nature. It is objective oriented. It has long-term benefits. It develops team spirit. You have to integrate subsystems, and it helps to develop employees' potentials. Let's move on to one of the most important and the basic answer or the basic इस आंसर के ऊपर पूरा HRM का नींव बना हुआ है. So let's go to the next answer, that is functions of HRM. Okay, what are the functions of HRM? The first function of HRM is human resource planning, HRP. What is HRP? HRP क्या करता है? मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है. कौन से बिना पर? क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बिना पर. तो HRP एक ऐसा प्रोसेस है जहां से आपका ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन बिगिन होता है. HRP में हम डिमांड एंड सप्लाई नीड्स को क्या कहते हैं, यू नो, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिमांड एंड सप्लाई नीड्स of the organization. So what do we do in HRP? We try to review the goals of the organization. हम हमारे कंपनी में क्या requirements हैं ये देखते हैं. फिर हम देखते हैं कि क्या वो requirements हमारे पास पूरे हैं. अगर नहीं है तो क्या हमें उन्हें मार्केट से लेना है. अगर लेना है तो क्या वो मार्केट में अवेलेबल है. So your two major words are important in HRP, that is demand and supply. Okay, the next and the most important function of HR is selection. Now selection and recruitment, these both go hand in hand. Okay, so what is recruitment? So recruitment is finding employees and selection is interviewing employees and placing them in your organization, which is the third function. So ये दोनों steps related है. So first आप क्या करोगे? Employee का interview लोगे. उससे भी पहले आप prospective employees को ढूंढोगे. कैसे ढूंढोगे? आप advertisement डालोगे, notice boards में अपना ads place करोगे internally. फिर आप उन्हें interview के लिए बुलाओगे और उन्हें select करोगे. Okay? That is called as selection. अब आपने एम्प्लॉई को सिलेक्ट कर लिया है, आप अब एम्प्लॉई को प्लेस करोगे. व्हाट इज प्लेसिंग द एम्प्लॉई? प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉई इज प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. आपको वो एम्प्लॉई को सही जगह पर प्लेस करना पड़ेगा. ओके, आप अगर एम्प्लॉई को सही जगह पर प्लेस करोगे तो वो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन देगा. इससे हायर कमिटमेंट बढ़ता है एम्प्लॉय से, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है. परफॉर्मेंस इंक्रीज होने से कंपनी खुश होकर शायद उसको रिवॉर्ड दे सकती है. यू नो, सो प्लेसमेंट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉय इज सैटिस्फाइड विद द जॉब. ओके, फिर आपने एम्प्लॉय को अपने पास रखा, साल भर हो गया एम्प्लॉय को. अब एम्प्लॉय क्या करेगा? काम करेगा. लेकिन क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, ये देखना होता है. ओके, तो ये देखने के लिए हमें एम्प्लॉय का क्या करना पड़ता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेज करना यानी हमें उन्हें उनके परफॉर्मेंस का सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन देना है और एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का ध्यान रखना है. ओके, नाउ strengths and weaknesses का ध्यान रखते हुए we need to give that employee a proper performance feedback. Okay? अब एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ्स भी होते हैं, वीकनेसेस भी होते हैं. अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का ये मतलब नहीं है कि आप एम्प्लॉय की खामियां ही देखो. आप अगर एम्प्लॉय की खामियां ही देखते रहोगे तो आप उसको निकाल दोगे.
हर एक एम्प्लॉय में दोनों चीज होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं एंड वीकनेसेस होते हैं। स्ट्रेंथ्स को आप डेवलप करो, ओके, और निखारो, और वीकनेसेस को आप इम्प्रूव करो, ओके। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मुद्दा ये नहीं है कि आप एम्प्लॉय को निकाल दो, नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और दूसरा वर्ड है उन्हें फीडबैक देना। ऐसा नहीं कि आपने परफॉर्मेंस जांच लिया और आपने वो बुक को क्लोज करके अपने लॉकर में रख दिया एज अ बॉस, नो। आपको उस एम्प्लॉय को बताना होगा, उसे जताना होगा कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है आगे के दिनों में, ओके। The next point is promotion. Okay, so परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, मान लो एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे कुछ तो देना पड़ेगा, तो आप उसे प्रमोशन दोगे। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन यानी या तो आप उसका ओहदा बढ़ाओगे या तो आप उसका पगार बढ़ाओगे, राइट। ये प्रमोशन दो तरीके से किए जाते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या तो दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ओके। आजकल कंपनीज दोनों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हालांकि सीनियर लेवल पे यूजुअली उसे सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, मिडिल लेवल पे मेरिट के बेसिस पे होता है। आजकल कंपनीज को ध्यान रखना चाहिए कि वो दोनों के ब्लेंड करके, दोनों को एक साथ मिक्स करके एम्प्लॉय को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीनियर है और उसमें काम करने की क्षमता नहीं है, वो भी गलत हो जाता है। और अगर काम ही कर रहा है बल्कि सीनियर नहीं है, सीनियरिटी नहीं देख रहे हैं, तो वो एक सीनियर को डिमोटिवेट कर देता है। तो कंपनी को दोनों चीजों को ध्यान में रख के एम्प्लॉय को प्रमोट करना है। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करता है? ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय के स्किल्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर और नॉलेज, क्या वर्ड्स कहा मैंने? स्किल्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड नॉलेज, ये चार चीजें इंप्रूव होती हैं, ओके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जहां एम्प्लॉयज को ट्रेन करने से वो ट्रेनिंग में जो सीखे हैं वो उस जॉब करते हुए उसे अप्लाई करेंगे और इसमें कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होता है, ओके। नेक्स्ट फंक्शन इज करियर डेवलपमेंट। व्हाट इज करियर डेवलपमेंट? करियर डेवलपमेंट ऐसा होता है जहां पर एक एम्प्लॉय का करियर ग्रोथ होता है। करियर ग्रोथ होने से कंपनी उसे चैलेंजिंग टास्क दे सकती है, नए स्किल्स दे सकती है, प्रमोट कर सकती है, कंपनी को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए एम्प्लॉय को करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देकर। तो आजकल कंपनीज क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप करते हैं और एम्प्लॉयज को फी कंसेशन में ये करियर डेवलपमेंट करने का मौका देते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज कॉम्पनसेशन फंक्शन। कॉम्पनसेशन यानी पगार। हम सारी जिंदगी पढ़ाई करते हैं एक ही वजह से, ताकि हम काम करें। हिंदी में there's a कहावत, पापी पेट का सवाल है। एट द एंड हम 15 years ऑफ एजुकेशन करते हैं, MBA करते हैं, कई सारी चीज़ों से गुजरते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, एंड दैट इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन इज सैलरी। तो HRM का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक सही पैकेज दें, एक कॉम्पनसेशन पैकेज बनाएं, ओके। रिवॉर्ड्स दें। रिवॉर्ड्स इसीलिए दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके। अब मोटिवेट करना, रिवॉर्ड देना दो तरीके से होता है, या तो मॉनेटरी या तो नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, and non-monetary could be in the form of status, position, appreciation, right? So all these aspects form a part of compensation. Now let's talk about labor relations. In factories laborers are बहुत aggressive हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि कंपनीज जो है वो लेबरर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो लेबरर्स स्ट्राइक के लिए चले जाते हैं और ये इंटर्न इफेक्ट होता है कंपनी के प्रोग्रेस को लेकर। इसीलिए कंपनी को लेबरर्स का ध्यान रख के इंडस्ट्रियल रिलेशंस उनके साथ बरकरार रखना चाहिए। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ HRM इज एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या आता है? पगार के अलावा
कंपनी को एम्प्लॉयज को कई सारी चीजें ऑफर करनी चाहिए, जैसे रिक्रिएशन फैसिलिटी, जैसे कॉफी वेंडिंग मशीन डाल दिया, जैसे एक क्रश फैसिलिटी दे दिया ताकि जो लेडीज हैं, मदर्स हैं, अपने छोटे बच्चों को जॉब पर लेकर जा सके, लेकिन जॉब में नहीं बल्कि वहां पर एक क्रश फैसिलिटी हो. ओके, कैंटीन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेस्ट रूम्स, ठीक है, ऑल दीज कम अंडर एम्प्लॉय वेलफेयर. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी. So what is employee health and safety? Giving them social security measures like, okay, health is basically giving them some kind of insurance, giving them safety devices, ताकि वो अगर शॉक वाले मशीन्स के सामने काम कर रहे हैं उन्हें शॉक एब्जॉर्बेंट्स दें. ओके, एंड अदर कुड बी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेंशन. Okay, all these come under employee health and safety. So what are the functions of HRM? Human resource planning, selection, placement, performance appraisal, promotion, training and development, career development, compensation, labor relations, employee welfare, employee health and safety. Let's move on to the next topic, that is importance of HRM. Okay, why is HRM important? HRM is important because, first of all, it enables the company to provide you with competent manpower. What is competent manpower? Competent manpower means those employees that are very, very dedicated to your organization, loyal to you, right? Let's say for example, अगर कंपनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है, मैंने आपको पहले भी क्या कहा था, स्किल्स इंप्रूव करता है, एटीट्यूड इंप्रूव करता है, और इससे एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंसी बढ़ता है. ओके, नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, यानी प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस. इससे वो पूरे पोटेंशियल के साथ काम करे और वेस्टेजेस कम हो, राइट, कम खर्चे में ज्यादा काम निकाल सके. ओके, नेक्स्ट इज मोटिवेशन. नेक्स्ट वी हैव वर्किंग रिलेशनशिप. व्हाट इज वर्किंग रिलेशनशिप? मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद योर एम्प्लॉयज. ओके, आप उन्हें पहले ही बताएं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है. यू डायरेक्टली टेल देम राइट इन द बिगिनिंग as to what is expected out of them. You clearly define the authority and responsibility of all the relationships. Superior कौन है, subordinate कौन है, उनसे क्या expected है, उन्हें किसे report करना है, किसे report नहीं करना है, ये सारी चीजें आप उन्हें पहले ही बता दें. अब ये सब करने से कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी का इमेज बनता है. अगर मैं कहती हूँ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज एक इमेज बना है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है. इससे लोग भी वहां जाना चाहते हैं. टेकिंग एन इंटरनेशनल एग्जांपल, गूगल. आज कौन गूगल में काम नहीं करना चाहता है? क्यों लोग गूगल में काम करना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखा है. ओके, HRM करने से क्या होता है? एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं. अब ये मोटिवेशन और जो मोरल है, दो पॉइंट्स जो है वो इंटर रिलेटेड है. मोटिवेशन जो है वो सिंगल एम्प्लॉय से रिलेटेड है, मोरल जो है वो ग्रुप एम्प्लॉय से रिलेटेड है. मोटिवेशन कैसे दिया जाता है? एक एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करके, उसे बोनस देकर. वरस मोरल कैसे बढ़ाया जाता है? ग्रुप में टीम स्पिरिट बढ़ाकर, ग्रुप इंसेंटिव्स देकर, ग्रुप को लंचेस में बेचकर, ग्रुप को अगर ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उन्हें ग्रुप इंसेंटिव देकर. ओके, तो HRM से एक सिंगल एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी मोटिवेटेड रहते हैं. ओके, HRM से व्हाट हैपेंस, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा होता है. नेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरा होता है? क्योंकि हम एक नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें तो अगर लोग एम्प्लॉयड रहते हैं तो उनका इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं. इससे फ्लो ऑफ कैपिटल जो है वो चलता रहता है.
इससे नेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होता है? क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं, वो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और कस्टमर्स भी खुश रहते हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ HRM इज दैट इट लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है, इमेज अच्छा है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करती है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है, दैट्स व्हेन कंपनी कंपटीशन को इजीली मात दे सकती है। ओके, एंड करियर डेवलपमेंट, HRM ये देखता है कि उसके हर एक एम्प्लॉई को वो करियर डेवलपमेंट के एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज दें। ओके, all these put together we can conclude that HRM is a very very important function. Okay, and HRM करने से क्या क्या होता है? Why is HRM important? So that there is competent manpower. Manpower is effectively utilized. There is working relationships. It enhances image. Employees are motivated. It improves the morale of the employees. It helps to achieve national and social objectives. Companies can easily fight competition and the development of career of employees take place. Till now what we have covered: features, functions and importance. Let me take you all to the next slide, that is traditional versus strategic HRM. What is strategic HRM? Can you see the arrow down? It shows that whenever a company adopts a strategic approach, it ensures that HR department of a company is very very proactive in nature. Okay, proactive means गलत होने से पहले ही भाप लेना कि गलती होने वाली है और हम उसे सुधार देंगे. Okay, so what happens in strategic HRM? It involves improving manpower policies and practices that is related to selection, training, placement, compensation, performance appraisal, motivation and career development. Strategic HRM क्या करता है? कोलैबोरेटिव मैनर में काम करता है ताकि कंपनी के एम्प्लॉइज उन्हें छोड़कर न जाएं. उनको ये देखना है कि एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंप्रूव हो. दे ensure that the talent of the employees are retained within the organization. So let's take a look on what is the distinction between traditional versus strategic HRM. So the meaning is that traditional HRM mein they have a traditional approach of managing human resources, whereas in strategic HRM they have a very professional and proactive approach. Okay, इनका goals जो है it's short term, whereas in strategic HRM the goals are long term. Okay, how is the nature of decisions? Reactive, यानी गड़बड़ हो जाता है फिर रिएक्ट करते हैं. और इन स्ट्रैटेजिक HRM पहले ही भाप लेना कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और हम उसे पहले ही होने से रोक लें. I'll give you an example here. So let's say पहले ही हम भाप लेते हैं कि 15-20 लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं वो देखना, दैट इज, और वो छोड़कर न जाएं, दैट इज प्रोएक्टिव. लेकिन रिएक्टिव, उन्होंने जॉब छोड़ दिया है और फिर हम माथा लेकर बैठे कि यार आगे ये फिर से नहीं होना चाहिए इसलिए हम स्टेप्स ले, वो रिएक्टिव है. ओके, तो ट्रेडिशनल HRM जो है वो रिएक्टिव वे में रिएक्ट करता है, वेराज स्ट्रैटेजिक HRM जो है वो प्रोफेशनल और प्रोएक्टिव वे में डिसीजंस लेता है. ऑब्जेक्टिव, ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिशनल HRM का? उन्हें कॉम्पेंसेशन देना. वेराज स्ट्रैटेजिक HRM का क्या है? ट्रेन करना, प्लेस करना, प्रमोट करना, मोटिवेट करना. ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में ट्रेडिशनल HRM ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज करते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेंटेन करना. वेराज स्ट्रैटेजिक HRM में व्हाट दे डू, दे अडॉप्ट, what do they do in strategic HRM? They adopt a 360-degree appraisal. They adopt feedback methods for strategic HRM. Promotion, again in traditional HRM, they adopt
Seniority, they adopt promotion techniques based on seniority, whereas in strategic HRM, they use a mixed blend of promotion as well as merit. Usually merit at the top level and seniority at the lower level. Next, placement. Traditional HRM does not use a systematic placement of employees, whereas strategic HRM emphasizes on placing the right person at the right job. Okay, quality of work. Traditional HRM gives more emphasis to quantity, whereas strategic HRM gives more emphasis to quality. Okay, now in traditional HRM, they don't believe in retention of employees, whereas in strategic HRM, they have loyalty programs, they have bonuses that they give for employees who are with the organization. In terms of selection, traditional HRM follows traditional techniques like, they don't follow employment tests, they don't take group interviews, whereas strategic HRM adopts scientific selection procedural techniques of first shortlisting the candidates, giving employment tests, then doing a group discussion, following it by a departmental interview, following it by an HR interview. So this is a scientific selection method that the strategic HRM adopts. Next one is training. Training in traditional HRM, they place emphasis on experience of employees and they train only experienced employees, whereas in strategic HRM, training is given to all levels. Training programs are created to suit the needs of the employees. So this is the distinction between traditional and strategic HRM. So we shall continue the next topics in the part 2 of this same module.